the recording start, we shall start. So, good morning, everyone. Today's topic is about the dates and calendar. I hope it's really a great surprise for you all that from the date we can detect what date or which day that is. So, it is really a outstanding thing. And in the demo class, I already told you regarding the personal 1 year memory topic, and from that we can calculate any day. But right now we are just going to learn the dates and calendar, especially from it. From 1901 to 2000 we can get any day from the given date. First of all, in the first round it may gives you little difficulty, but after getting it to it, it is really easy part for you to learn it. Okay, and please dear student, you need to keep it in the mind. In the examination also it will come, so be ready and prepare yourself. Now everyone see, the key will remain the same for any given number, that is 1901 to 2000. Keep it in the mind. This is for 100 years, around 100 years. Okay, so it is very easy to memorize also. 144, this is the square of 12. This is 025, this is the square of 5. 036, it is the square of 6. And 146 is normal. Okay, so is it memorized? First is, it is the square of 12, that is 144. Next one is 0 to 5, that is the square of 5. Third one is the square of 6, and fourth one is the normal 146. So January is 1, February is 4, March is 4, April is 0, May is 2, June is 5, July is 0, August is 3, September is 6, October is 1, November is 4, December is 6. So you need to memorize it. In easy way also I have given. This method is to memorize easily. 144, January, February, March. 0 to 5, April, May, June. 3, 6, 7, that you know, July, August, September. 146, October, November, December. Then you can detect. Suppose if I will say, what is the October? October means 146. Means 1, 2, 3. October code is 1. I hope it is clear to your mind. Yes, sir. Yes, sir. 144 025 036 146. Very easy. You know the mobile number you can memorize easily, but it is easier than the mobile number also. 12 digit, no problem, but there is sequence. Okay, now what day is 26th June 1983? And I hope all your fathers, those who are studying right now with me, all your fathers may be taken birth in between 1970 to 1980 or 85 up to. Okay, so you all need to check it. And you know, if the reminder is 1 Sunday, reminder is 2 Monday, reminder 3 Tuesday, reminder 4 Wednesday, reminder 5 Thursday, reminder 6 Friday, and if the 0 come, then that is a Saturday. Keep it in the mind. Okay, now this is the first step to take the year. Only the year. Year is 83. We know 1983, but we are forgetting the 19 because we are learning the 19 series only. Okay. So the year will be taken as 83. So that we have kept it. Okay. Next thing. Number of the leap year will be 20. But how we can calculate the number of the leap year is 20? First of all, dear student, let us keep it in the mind. लीप ईयर कम्स वंस इन ईयर, तो 83 को हम लोग डिवाइड कर देंगे सिंपली 4 से, क्योंकि कितना तो लीप ईयर आएगा वो निकालने के लिए। तो 83 ये वाला ईयर है, और लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है। कैलकुलेट 4 2 जा 8, देन 0, 3 कम्स, देन 4 0 जा 0, तो 3 से 0 गया 3। कहने का मतलब है 20 लीप ईयर आ रहा है और 3 डेज एक्स्ट्रा हो रहा है। तो 20 लीप ईयर आ रहा है तो मैं यहाँ पे लिख दिया, जैसे कि आई हैव रिटन हियर 80 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 20। ओके, आफ्टर दैट द मंथ की ऑफ जून, जून का मंथ की क्या है, 0 to 5, याद करो 5 है। मंथ की ऑफ जून, यहाँ पे देख लो, मंथ की ऑफ जून इज इक्वल टू 5। इज इट केप्ट इट इन योर माइंड? नाउ वी आर प्लेसिंग इट हियर। तो द मंथ की ऑफ द जून इज इक्वल टू 5। उसके बाद डेट क्या है, 26। ये डे को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। बस इतना ही तो कैलकुलेशन करना है। पहला ईयर को लेना है, उसके बाद वो तो पता ही चल जाएगा, 4 से डिवाइड कर दोगे तो जो भी नंबर आएगा वो है लीप ईयर। उसके बाद जून का कोड, और उसके बाद डेट को ऐड कर दोगे। डेट को ऐड करने के बाद 137 होता है। उसके बाद हम लोग का कितना डेज इन वीक होता है,
7 days in a week. बस डिवाइड कर लो, डिवाइड करने के बाद हमको कोई मतलब नहीं है क्वोशिएंट से, हमको मतलब है रिमाइंडर से, और रिमाइंडर क्या है 1, तो ये हो गया संडे, एंड संडे इज द फन डे, hence we can say 26th of June 1983 was a Sunday. Okay, तो अपने पापा या मम्मी को So पूछ what सकते, if reminder is zero? हाँ, if the What reminder is if zero then reminder is Saturday, zero? यहाँ पे लिखा गया ना, if reminder is equal to 0 then that is Saturday. Everything Sir, is why here have in we this divided box it by 7? because 7 days in a week. हमको चेक करना है कि कौन सा डे में आ रहा है वो, ठीक है ना? ओके, Yes. और ये एक सर्टेन फॉर्मूला है, और ये बनाने के लिए ना सोच लो कितना मास्टरमाइंड यूज हो रहा होगा, और ये मास्टरमाइंड बनाया कौन है पता है? नाम भी ले लेता हूँ, यू मे बी नोइंग द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन Shankaracharya, who is the father of Vedic maths right now. Secondly, one more name you may have seen in the movie, that is Shakuntala Devi. Shakuntala Devi कभी भी स्कूल नहीं गए हैं, but he has learned it by his own resources. He has taken help obviously, but he has developed his mind. हम लोग जैसे रॉब करते हैं ना, उनको रॉब करना जरूरत नहीं है, उनका माइंड पे रॉब चलता है। सोच लो कितना डिजिट को वो माइंड पे रख सकते हैं, ठीक है ना? तो आफ्टर दिस आई होप द पार्ट इज ओवर। उसके बाद सबसे पहले ध्यान देना है, ईयर को लेना है, कितना तो लीप ईयर लेना है, जून का कोड और डेट को बस ऐड कर देना है और 7 से डिवाइड कर देना है। दूसरा वाला देखो, सपोज 15 अगस्त 1947 है, जिस दिन इंडिया का सेपरेट कंट्री के रूप में डिसाइड किया गया था और सेपरेट किया गया था, दैट इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंस डे, इज इट? तो ईयर है सबसे पहले 47, 47 को यदि 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 1 जा 4, 7 4 1 जा 4, 7 से 4 गया 3, हमको रिमाइंडर कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन मतलब है 11, तो लीप ईयर कितना है? 11। ये माइंड पे होगा, ठीक है? मंथ की कितना है? अगस्त का ऑलवेज 3 है, क्योंकि 036 पड़े थे, 3 ही है। उसके बाद डेट कितना है? 15, क्योंकि 15 अगस्त है डेट, सभी को प्लस करेंगे 76 आएगा, और हमको पता है कि यदि इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 76 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7 1 7 0 6, 6 ही रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है ना? तो यदि 6 रिमाइंडर आ रहा है तो वो डे क्या है? फ्राइडे है, ठीक है? 6 इज इक्वल टू फ्राइडे। बिल्कुल क्लियर है ना? अभी कोई भी एक तो डेट बोलो, मैं करके दिखाऊंगा। अब ये आइडिया को ध्यान रखना। सबसे पहले बताओ कोई भी एक तो डेट। Sir, बताओगे? 25 October 1987. 25 अक्टूबर 1987। Yes, और sir. एक बार रिपीट करोगे? 1987। ओके, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले सिर्फ हम लोग ईयर को लेंगे 87 माइंड पे। उसके बाद 87 में लीप ईयर कितना आता है? सबसे देखो 80 में 22 लीप ईयर आता है, क्योंकि 80 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 20, फिर यहाँ पे 7 है, तो 7 के लिए फिर एक लीप ईयर आएगा, कहने का मतलब है 21 लीप ईयर आ रहा है। डिवाइड कर लो, मैं मेंटली कर रहा हूँ। 87 को जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 8 से 8 गया 0, 7, 4 1 जा 4, 7 से 4 गया 3, तो कितना तो लीप ईयर आ रहा है? 21। तो 21 को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। उसके बाद मंथ की क्या है? अक्टूबर का मंथ की क्या है? बताओ फटाफट। अक्टूबर का मंथ की फर्स्ट टाइम मैं दिखा 1. दे रहा हूँ, 146, 1. इसीलिए अक्टूबर का 1 ही लिए थे हम लोग, ठीक है ना? तो अक्टूबर का है 01, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो डेट है 25 है, उसको भी ऐड कर देते हैं। कितना होगा? 134। बिल्कुल क्लियर है ना? उसके बाद इसको हम लोग जस्ट डिवाइड करेंगे 7 से, कर लेते हैं। 134 डिवाइडेड बाई 7, तो कितना होगा? 7 1 जा 7, 13 से 7 गया 6, 64, 7 9 जा 63, तो रिमाइंडर आ रहा है 1। और पता ही है रिमाइंडर यदि 1 आएगा तो क्या होगा? रिमाइंडर 1 आएगा तो वो है संडे। Sunday. तो चेक कर सकते हैं सब लोग, आ रहा है क्या संडे? ऑब्वियसली Yes, आएगा, sir.
क्योंकि फॉर्मूला रॉन्ग नहीं है। और ये फॉर्मूला ना लगभग इतना सारा चेकिंग किया गया है, इतना सारा टेस्ट किया गया है, लेकिन एक चीज में ये रॉन्ग होता है। ये फॉर्मूला एक चीज में रॉन्ग होता है, मैं अभी उसका भी बताऊंगा। वो जो एक्सेप्शंस है, वो छोटे से एक्सेप्शन में एक दिन को पहले काउंट करते हैं, बाकी काम खत्म। वो भी बहुत इजी है। और कोई डेट ऑफ बर्थ किसी को पूछना है? और किसी को डेट ऑफ बर्थ पूछना है? कौन सा डे है? Sir, I am having doubt on remainder of the 15th August 1947. ओके, बिल्कुल। 15 अगस्त 1947 किस चीज का रिमाइंडर? जब ये टोटल हो गया 76, तो 76 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? ये वाला डिवाइड बोल रहे हो ना? 76 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 0, उसके बाद 6 उतरा, नहीं जाएगा, 7 0 जा 0, तो 6 आ गया रिमाइंडर। अच्छा, ये यहाँ Yes, पे sir. 10 नहीं लिखा था, वही बोल रहे हो ना? वो छोड़ दिया था, मुझे तो रिमाइंडर से मतलब है ना, इसीलिए। Yes, sir. ओके, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, नहीं, महात्मा गांधी तो थोड़ा सा 1900 से ज्यादा है, पहले का है, 1989 का है, तो उसका ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा। तो फिलहाल हम लोग किसका डेट ऑफ बर्थ लें, किसका लें, बताओ? संविधान कब बना था? वो है 26 जैन 1950। बिल्कुल क्लियर ना, है कि नहीं? Yes, sir. इसके लिए एक एक्सेप्शन आता है, ध्यान देना। कोई कोई दिक्कत नहीं, चलो, हाँ, कोई टेंशन नहीं आएगा। सबसे पहले ईयर क्या है? 50। ईयर देखो 50 है। उसके बाद लीप ईयर कितना आएगा? 12 4 जा 48, मतलब 12 ठो आ रहा है, तो 12 ऐड कर देता हूँ, ये लीप ईयर वाला है। उसके बाद मंथ की क्या है? जनवरी का 1 है ऑब्वियसली। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि डेट क्या है, ऑब्वियसली 26, सभी को प्लस कर दो, 89 हो रहा है। 89 को किससे डिवाइड करेंगे हम लोग? 7 से, हमको रिमाइंडर से मतलब है। 7 1 जा 7, 8 7 गया 1 17, 7 2 जा 14, 17 से 14 गया 3, तो 3 रिमाइंडर मतलब क्या है? मंगलवार को हुआ था। Sir, you have to divide with 89. ओ सॉरी, 80 नहीं ना, मैं 87 लिख दिया था। 89 मतलब कितना होगा? 9 से 4 गया 5, और यदि 5 है तो क्या होगा? थर्सडे, गुरुवार के दिन बना था। ओके ना, क्लियर? Sir, take 10 June 1956. ओके, मैं पहले डेट को लिख देता हूँ, 10 जून 1956। सबसे पहले 10 जून है, तो ईयर को लूंगा पहले 56। उसके बाद लीप ईयर कितना आता है 56 में, कैलकुलेट कर लो। 56 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 1 जा 4, 5 से 4 गया 1 16, 4 4 16, 14 तो एग्जैक्ट आ रहा है। कितने आ रहा है? एग्जैक्टली 14। उसके बाद जून का मंथ की क्या है? ऑब्वियसली हमको पता है, जून का तो मंथ की तो 5 ही है ना? Yes, नहीं पता sir. तो देख भी लेता हूँ, जून का 5 है एग्जैक्टली। उसके बाद मंथ की हो गया 5, उसके बाद डेट चिपकाएंगे, डेट तो बोले हो 10 जून, तो मैं यहाँ पे चिपका देता हूँ 10, बस ऐड कर लो, 85 आ गया। Sir. इज इट? Yes, sir. 85 को 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 1 जा 7 हो रहा है, फिर 15 7 2 जा 14, तो रिमाइंडर आ रहा है 1, और रिमाइंडर 1 मतलब संडे। Sir, संडे तो फंडा क्लियर हो I गया। have shown two number that without anything and both came Sunday. अच्छा, बोथ केम संडे। फाइनली यू नो ना, यू अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व दिस, यही सफिशियंट है। उसके बाद वो अभी एक्सेप्शंस को बताना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि एक्सेप्शंस होता है हर एक चीज का, तो ये है एक्सेप्शन। ध्यान देना, ये एक्सेप्शन कितना होता है, ये इसको इतना पढ़ो मत, मैं सीधा बता देता हूँ। यदि ईयर, यदि लीप ईयर है, लीप ईयर तो पता चल जाता है, 19 सपोज 1940 आ गया, तो यदि 1940 आ गया तो ये यूनिट डिजिट को लेना है, यूनिट और 10 डिजिट, ये क्या है 40, कहने का मतलब है ये है लीप ईयर, है ना? ये क्या ईयर हो गया? लीप ईयर।
और जब लीप ईयर आता है और जनवरी और फरवरी मंथ का यदि डेट पूछता है तो एक दिन पहले बताना कैलकुलेशन करने के बाद। यदि, और एक बार बताता हूं, यदि ये 2 डिजिट यदि लीप ईयर आ गया तो लीप ईयर का यदि जनवरी और फरवरी मंथ का यदि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, जनवरी और फरवरी मंथ का यदि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमको क्या करना होगा, हमको ये चीज ध्यान रखना होगा कि जो भी आंसर निकलेगा उससे एक दिन पीछे जाना है, क्योंकि लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है, 29 डेज हो जाता है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत होता है। इसीलिए हमको यहाँ पे ध्यान देना है। सबसे पहले लिया गया है 10 फरवरी 1948। तो सबसे पहला 48 तो लीप ईयर, परफेक्टली लीप ईयर है, 12 4 जा 48 एग्जैक्टली लीप ईयर है, और वो भी फरवरी भी है। जनवरी और फरवरी होने से हमको ये मेथड यूज करना पड़ता है, बाकी सेम मेथड है फॉलो करना। 48 को पहले लिख दिया गया। 48 मतलब 12 चौड़ 40, मतलब 12 ठो लीप ईयर है। इसका मंथ का जो की है फरवरी 144 होता है, तो 4 हो गया, और उसके बाद जो डेट है 10 है, वो सभी को प्लस कर दिए तो कितना हो गया 74। चेक कर लो, खुद से भी चेक कर सकते हो। 4 1 74 एग्जैक्टली 74 आ ही रहा है। और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो 10 7 जा 70, तो रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर इज इक्वल टू 4 आ गया। और रिमाइंडर 4 क्या है, रिमाइंडर 4 है वेडनेसडे, कहने का मतलब बुधवार, वेडनेसडे। बिल्कुल क्लियर है ना, रिमाइंडर 4 क्या है, वेडनेसडे। और वेडनेसडे है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये है 40 और ये है जनवरी और ये है फरवरी। जब जनवरी फरवरी और लीप ईयर होता है तो वेडनेसडे ना मान के उसका एक दिन पहले जाया जाता है, और वो क्या है, ट्यूसडे। बिल्कुल क्लियर है। Yes, sir. तो एक दिन पीछे बच जाता है, बाकी सब फॉर्मूला सेम है। हाँ, अब पूछो, कोई डाउट है तो। No, sir. Can you open that page with the months and their code? I want to take screenshot. कोई दिक्कत नहीं है ना। Taken, sir. ओके, और इसका तो पता ही है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट रख लो कम से कम, कि कैलकुलेशन भी दिख जाएगा कैसे कर रहे हैं, कभी भी भूल जाओगे। और आज यू ऑल आर गोइंग टू कैलकुलेट द डे ऑफ योर पेरेंट्स। जितने भी पेरेंट होंगे सभी का कैलकुलेशन करोगे इस फॉर्मूला पे, और बोलोगे कि बिना कैलेंडर देखे हम लोग हाँ यस Sir, can you explain another number? हाँ बिल्कुल, कोई भी एक तो तुम्हारा पापा का डेट ऑफ बर्थ बताओ। Sir, I forgot. ओह एक्सीलेंट, क्लैप फॉर यू, ओके नो प्रॉब्लम। सबसे पहले देखो 24 अगस्त 1982 लिया नॉर्मली। सबसे पहले क्या करेंगे, जो ईयर है उसको लिखेंगे 82। 82 में कितने ठो लीप ईयर आ रहा है, 20 लीप ईयर आ रहा है, तो 20 लिख दिया, क्योंकि 80 है 20, 2 रिमाइंडर बचा, छोड़ो उसको। उसके बाद मंथ की जो अगस्त का है वो क्या है 3, उसके बाद डेट क्या है 24, सभी को प्लस कर तो कितना हुआ 129। 129 को बस 7 से डिवाइड कर दो, कितना होगा 7 1 जा 7, 12 से 7 गया 5, 59। 59 से 56 गया 3, तो रिमाइंडर आ गया 3। तो जब रिमाइंडर 3 आता है तो हम लोग का ट्यूसडे होता है, कहने का मतलब है मंगलवार। काम खत्म, तो हो रहा है ना इजीली। और इसको मेंटली भी कर सकते हो। सबसे पहला है 82। 82 में कितना ठो लीप ईयर आता है 10, मतलब 82 प्लस 10 हो गया 92। 92 फिर अगस्त का कोड है 3, तो 92 प्लस 3 बिकम 95। 95 फिर डेट क्या है 24, 95 प्लस 24 इज इक्वल टू 129। 129 को 7 से डिवाइड करते हैं, कितना होगा 7 1 जा 7, 12 से 7 गया 5, 59, 7 8 जा 56, मतलब रिमाइंडर आया 3, और रिमाइंडर 3 मतलब क्या है मंगलवार। मेंटली हो गया ये, है ना, कर सकते Yes, sir. बस पहला राउंड के लिए हो सकता है 4-5 सेकंड 10 सेकंड तक ले लो, लेकिन इसको ना मेंटली ही करना। लिख लिख के करोगे तो फिर पेपर में ही रह जाएगा, और जब पेपर गुम तो माइंड भी टुम, इसलिए मेंटली करना कर लो। तो कुछ नया Sir, सीखने it को is मिल the रहा है ना। formula from, sir, it is formula for 1901 to 2000. Is there any specific formula for एग्जैक्टली 2001
वो वर्जन आ रहा है, वो वर्जन आ रहा है। मैं उसका एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा एंड आई विल बी सर्कुलेटिंग टू यू ऑल। ओके, Yes, फिलहाल sir. के लिए Okay, वो sir. पर्सनल ईयर वाला कैलकुलेट कर सकते हो। 2021 का जो हम लोग फॉर्मूला बनाए थे सब भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। देखो ये 100 साल के लिए बनाया तो ऑब्वियसली। यस, टेल मी उद्भव, एनीथिंग एल्स? How to detect it is a leap year or not? 4 से डिवाइड कर दो, और यदि 4 से डिवाइड करने के बाद यदि रिमाइंडर कुछ भी आया तो लीप ईयर नहीं है, और यदि रिमाइंडर 0 आया तो लीप ईयर है। कोई भी एक एग्जांपल लेता हूँ 1956, तो उसका सिर्फ 2 डिजिट लेना, 56 को मैं डिवाइड कर दिया 4 से, तो कितना हो गया, 4 1 जो 4, 5 से 4 गया 116, 4 4 जो 16, रिमाइंडर आ गया 0, तो ये लीप ईयर है, क्योंकि हर एक 4 साल में एक बार लीप ईयर होता है, ठीक है। तो वही है यहाँ पे भी कैलकुलेशन, 56 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0, तो 1956 लीप ईयर है और इसके फरवरी 29 डेज का है। ओके दीपक, आर यू देयर? Okay, sir. Yes, sir. तो फाइन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ये पढ़ेंगे हम लोग कल। लेकिन आज के लिए मैं कुछ स्पेशल सोचा हूँ। देखो कितना सारा इक्वेशन पढ़ेंगे हम लोग, पूरा शॉर्टकट्स पढ़ेंगे और तगड़ा वाला शॉर्टकट पढ़ेंगे ये सब। ओके, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी पढ़ाएंगे, लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ कुछ मैजिक करेंगे। Yes, sir. करें, उसके बाद फिर ये क्लास को क्लोज कर देंगे आज के लिए। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ मैजिक भी सीख लेंगे, ठीक है। तो Yes, मैजिक, sir. ये सब लोग रेडी रहना, मैजिक के लिए सब लोग रेडी रहना। और ये खतरनाक टाइप के मैजिक है, मेरे पास 3 मैजिक है, और बाकी मैजिक हम लोग बना सकते हैं, बाकी मैजिक हम लोग बना भी सकते हैं, और बनाने का भी फॉर्मूला मिलेगा, इजी है। सबसे पहले, हाउ टू प्रेडिक्ट अ पर्सन डेट ऑफ बर्थ। पर्सन बताएगा नहीं उसका डेट ऑफ बर्थ, लेकिन हम लोग बोल देंगे कि उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है। सब लोग रेडी हो? फॉर्मूला को देखो मत, Yes, sir. लेकिन पॉसिबल हो सकता है क्या कि वो बिना बताए डेट ऑफ बर्थ हम लोग उसको बता देंगे, बस कुछ क्वेश्चन से कर सकते हैं हम लोग। एग्जाम्पल भी है, सब कुछ है, ध्यान दोगे। सबसे पहला है प्रेडिक्ट पर्सन डेट ऑफ बर्थ। तो ध्यान देना है, सबसे पहले डेट और मंथ कैलकुलेशन होता है, ईयर कैलकुलेशन नहीं होता। ओके ना, क्लियर। सबसे पहले सपोज मेरा डेट ऑफ बर्थ है 14, दिस इज माय डेट ऑफ बर्थ। ओके, तो चलो मेरा ही कैलकुलेशन करते हैं और मेरा आंसर निकल रहा है कि नहीं चेक कर देते हैं। सबसे पहले टेक मंथ ऑफ द बर्थ। मंथ क्या है? सितंबर। सितंबर मतलब 09। उसको सेकंड वाला स्टेप में क्या करूंगा? मल्टीप्लाई बाय 2, 9 2 जा 18। उसको फिर 5 से ऐड करूंगा, कितना हो गया? 23। उसको फिर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना होगा? 115। Sir, yes. उसके बाद पुट द जीरो, कोई दिक्कत होगा बोलना कैलकुलेशन में, नहीं तो आंसर भी रॉन्ग आएगा। उसके बाद पुट जीरो बिहाइंड द आंसर, कहने का मतलब है 115 है तो वो बन जाएगा 1150, क्योंकि जीरो एक तो उसके यूनिट प्लेस में जीरो पुट कर देंगे। उसके बाद एड देयर डेट ऑफ बर्थ, तो 1150 है, इसमें हम लोग का डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर देंगे। डेट क्या है? 14, बस कैलकुलेट कर दिया, कितना हो गया? 1164। लेकिन इससे हम लोग पता कैसे करें? यस, इससे पता करेंगे, और ये वाला फॉर्मूला तो हम लोग का माइंड पे रहेगा। और इसके बाद एक फॉर्मूला हमको यूज करना पड़ता है, और वो है 250 से माइनस करते हैं। ये किसी को मत बताना, 250 से हम लोग इसको माइनस करते हैं। 1164 है, इसको माइनस करेंगे 250 से, कितना होगा? 404। 6 से 5 गया 1, 11 से 2 गया 9। यहाँ पे एक तो लाइनिंग खींचेंगे, 14 है डेट, 9 है मंथ। बिल्कुल है कि नहीं? 14 डेट, मंथ है 9, मतलब सितंबर। काम आ रहा है? Sir, यस। but how to know the month of the candidate? हाँ हाँ हाँ, For calculating this, how to predict the month of the birth and the date? वो उसको देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ। मैं किसका एग्जांपल लूँ, किसका लूँ? हाँ चलो, कोई भी एक जन बोलो, नहीं बर्थडे बोलो नहीं, बस मेरा आंसर देना। तो मैं किसको चूज करूँ? किसको भी चूज कर लूँ, सभी को एक एक चांस दे देंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं विवान को पूछूं? विवान, आर यू रेडी?
Yes, sir. ओके, तो विवान मुझे बताना नहीं कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। सबसे पहले बताओ कि जो डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ का मंथ को ले लो, मंथ का नंबर। जैसे कि सितंबर है तो मैं 9 लिया हूं, अक्टूबर होता तो 10, अगस्त होता तो 8, तो ले लिए अपना। Yes, sir. उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, Done. उसके बाद उसमें 5 ऐड कर लो, Done, sir. उसके बाद फिर जो आंसर निकला उसको 5 से मल्टीप्लाई भी कर लो। Done. उसके बाद जो भी नंबर रहेगा उसका यूनिट डिजिट में 0 पुट कर दो। जैसे कि सपोज मेरा आंसर आया है 15, तो वहां पे एक तो 0 पुट कर दो, तो ये हो गया 150, हो गया। Yes, sir. उसके बाद जो आंसर निकला उससे अपना डेट को ऐड कर दो, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा उसका सिर्फ डेट को Done. कर लिए। तो अब भी बताओगे कि वो जो आंसर निकला वो क्या है। क्या आंसर निकला, फाइनल आंसर? Sir left. Sir, answer Vivan Soni left. अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम। नेटवर्क वेटवर्क कटे नहीं, एक्चुअली क्या होता है पता है ना, जब माइक ऑन करोगे और बाय मिस्टेकली यदि दब गया वो रेड वाला बटन, तो एग्जिट भी तो हो जाओगे ना, उसीलिए कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग दूसरा किसी को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसको लूँ, किसको लूँ, किसको लूँ? शिवम, आर यू देयर? इतना टाइम नहीं लेना है ना, ओके, कोई दिक्कत नहीं। दीपक, आर यू देयर? Yes, sir. ओके, तो फटाफट फॉलो करना। सबसे पहले अपना मंथ ऑफ सर बर्थ को मैं लो। पूरा कर लिया। सर कर लिया पूरा ना, कर लिया 1360। 1360 ये आ गया आंसर। उसमें से सिर्फ मैं 250 को माइनस कर दूंगा। ये हो गया 0, 6 से 5 गया 1, और 13 से 2 गया 11। कहने का मतलब है 10th नवंबर। इज इट करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. तो चलो क्लैप करो सभी के लिए। नाउ वी हैव लर्न दिस। और जो भी होगा ना, ध्यान देना कि ये जो यहाँ पे 2 प्लेस होना चाहिए और यहाँ पे बाकी डिजिट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 2 प्लेस होना चाहिए और यहाँ पे बाकी डिजिट बच्चा कुछ होना चाहिए। तो ये समझ में आ गया। इसको मिनिमम 2-3 बार प्रैक्टिस कर देना, सभी को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक ही मैजिक पढ़ने और 2 मैजिक मेरे पास बचा है, तो कल परसों फिर पढ़ने, करेक्ट? Sir, and how Yes, to sir. get our own method for calculating for another वो भी year? बता दूंगा, वो भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इसको प्रूव करूंगा, मैं बताऊंगा नहीं कि बनाना कैसा है, मैं बस दिखाऊंगा रास्ता कि बनाना कैसा है। बनाना तो आप सभी को है, Sir, Sir, for finding the day and that one. ठीक है ना। इसको मैं प्रूव करके बता दूंगा, इससे ही पता चल जाएगा कि बनता कैसा है। और ये सब कुछ नहीं बता सकते, जो मिनिमम 9th और 10th स्टैंडर्ड में होंगे वो लोग बना सकते हैं, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी वेरिएबल के साथ बहुत खेल चुके हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल, जो पोलिनोमियल थोड़ा मोड़ा पढ़ लिया, जो इक्वेशन को थोड़ा मोड़ा पढ़ लिया ना अच्छे से, अच्छे लेवल पे, उसके लिए बनाना बहुत ईजी है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। sir, यस, टेल मी। sir, sir, can you find my date of birth? ओके, बिल्कुल। सबसे पहले वो जो नंबर है वो बताओ। ये सब प्रोसेस फॉलो करने के बाद किस स्टार्टिंग से करना है? सबसे पहले मंथ ऑफ बर्थ ले लो, Yes, sir. मल्टीप्लाई 2 करो, Yes, sir. ऐड करो 5, Yes, sir. मल्टीप्लाई करो 5। Yes, sir. जो भी यूनिट नंबर निकला उसका यूनिट डिजिट में 0 डाल दो। कहने का मतलब यदि 3 डिजिट होगा तो 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। Yes, sir. उसके बाद फिर वहां पे डेट को ऐड करो, डेट ऑफ बर्थ को, ओनली डेट। Yes, sir. Done. बताओ वो नंबर क्या है? Sir, 3381. 3381। इससे बस 250 को माइनस कर दो, तो यहाँ पे हो गया 8 से 5 गया 3, मतलब 31st डेट है और मंथ है। इतना बड़ा आ जाएगा? 3381 तो नहीं आने वाला, Yes, sir. इतना बड़ा तो नहीं आता, क्योंकि मंथ तो 12 से, मैं ये यूनिवर्सल प्रूव्ड फॉर्मूला है। चलो कोई दिक्कत नहीं, मुझे बताओ अपना
डेट ऑफ बर्थ क्या है बता दो, मैं प्रोसेस समझा दूंगा। सर 31st मार्च। 31 मार्च मतलब 3। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मंथ ऑफ बर्थ ले लिया मैं 3, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो 6 हो गया, फिर 5 ऐड कर दिया, 6 5 जा 30 हो गया। हाँ 5 से प्लस किया तो कितना हो गया 11, तो फिर 11 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 55। बिल्कुल क्लियर है ना? अरे यही तो पैटर्न चल रहा है, यही वाला ही पैटर्न चल रहा है। ओके कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 55 हो गया, उसमें जीरो डाल दो, कितना हो गया 550। उसमें फिर हम लोग क्या करेंगे, Sir, we will add 31. ऐड कर देंगे। करेक्ट, कितना हो गया 31 को ऐड कर देते हैं, कितना होगा 1 + 0 बिकम 1, 5 + 3 बिकम हो गया 8 और 5 बन गया 5, तो 581 ही हुआ, 3000 नहीं हुआ। ठीक है No, ना? sir. I तो think 5 I think we will add 3. Sir, I have done I have took the date in the starting. I have to अच्छा take the उसीलिए है, months. उसीलिए 31 ले लिए, तो 31 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 ऐड करोगे, फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। नो प्रॉब्लम। Yes. 581 है, इसको मैं माइनस कर देता हूँ 250 से, तो कितना होगा, यहाँ पे आ गया 31 और यहाँ पे आ गया 5 से 2 Sir, 3, तो 31 मार्च। ओके रेडी? Yes, यस sir. यस बताओ, और कोई डिफिकल्टी है?